ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ? ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਜਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਿੱਧ ਮਤਲਬ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣੋ? ਸਿੱਧ ਬਣੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣੋ? ਸੰਪੂਰਨ ਬਣੋ। ਸੰਪੂਰਨ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 100% ਜਿਹੜਾ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣੋ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਦਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿਣਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਮੀਂਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ 10-11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਦੀਆਂ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਤਾ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆਲਸਪਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਚਰਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, 9 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਜੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ? ਵਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗਾ ਚੋਰੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਦੀ ਲੱਭੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਪਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਚੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਪਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਤਾ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਪਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਚੱਪਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਿਲਣ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਮਝ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। 2.5 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ?
ਜਿੱਦਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਚੋਰ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਚੋਰ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ। ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 'ਚ ਨਿੰਦਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਤਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਗੜਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ? ਬਸ 2-4 ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ? ਮੇਜਰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਹਦਾ ਚੋਕਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਕਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਏਦਾਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਿੱਧਤਾ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਤਾ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੁਝਦਾ ਸਾਰ ਉਹਦਾ 18 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 13 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। ये लिखा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा के सामने एकदम सिद्ध बने रहना हैगा, संपूर्ण बने रहना हैगा। ये परमेश्वर का याद रखो, परमेश्वर की एक आज्ञा, परमेश्वर का एक हुक्म हैगा जे कि परमेश्वर के सामने जिहड़ा आ सिद्ध बने रहना हैगा, सिद्ध बने रहना हैगा। सिद्धता दे विच 3 चीज़ों के बारे होर भी बहुत है, मैं 3 चीज़ों के बारे तुहानूं अज सिखाउणा चाहुंदा हैगा ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੋਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪ ਨਿਕੰਮੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय ਉਹਦੇ 1 वचन जिस तरह लिखा हैगा, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सिद्ध होने तो अब्राम को किहड़ी चीज रोक रही सी? वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं सी। परमेश्वर ने कहा मेरे सम्मुख चल, मेरे सामने जो मैं कहना उदा कर, ते की बनता जा, सिद्ध हो जा तू। ਇਹਦਾ मतलब सिद्धता क्यों ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ? ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਰੋਕਤਾ? ਉਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਬਰਾਮ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ? पता ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾਗਾ। बड़ी बड़ी असी प्रचार सुनते कहने कि अब्राहम ने विश्वास किया इस करके बेटा मिल गया। बेटा लिखा कि वचन के विश्वास करो अब्राहम ने किहड़ी चीज उपर कीता सी? बेटा होने तो बाद जो अपने बेटे की बलि देन गया उस समय विश्वास किया। और उत्थे लिखा कि उन्हें जो विश्वास किया वो लेखे गया वो धर्म गिणिया। अब्राहम ने जो विश्वास किया है वो धार्मिकता से गिनी गई हैगी आ। पर याद रखो अब्राहम ने हाजरा के नाल जिहड़ा जाके जिहड़ा आ वो जिहड़ा संबंध बना के बेटा पैदा किया परमेश्वर की इच्छा दे विच नहीं सी हैगा। इस करके की आओ सिद्ध नहीं हो सकिया। कितने साल तक वो सिद्ध नहीं हो सकिया? पता किसी को कितने साल तक? 75 साल की उम्र के
परमेश्वर ने गल की और इतने कितने चिर का हो गया 24 साल तक 24 साल तक अब्राहम सिद्धता के नहीं पहुंचा। असी अज बहुत छेती किसी ने कह दें मैं संपूर्ण हाँ जी किसी करके डिग जाते हैं। 24 साल अब्राहम की जिंदगी के लंघ गया और हजे तक परमेश्वर की नजर जो किया संपूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆ, ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਆ। मैं अपने आप को नहीं कह रहा कि मैं संपूर्ण कह रहा मैं पूरा कर चुका हूं। कि पौलुस भी की लिखता गया मैं ये नहीं कहना कि मैं भी हाँ फड़ चुका मैं पूरा कर चुका पर मैं किधर नूं दौड़दा आ अपने निशाने वाल दौड़दा ताकि जिहड़ा परमेश्वर च मेरा फल मैं प्राप्त कर सकां। हर रोज हर समय तुहानूं जिहड़ा जरूरत हैगी दौड़न दी कि तुसीं उस फल तक पहुंचो जो तुहाडे लई रखिया कि तुसीं भी चाहुंदे कि अब्राहम दे वांगू 24 साल तुहाडे विच चले जाण। पहली गल ते अज दा विश्वासी 24 साल इंतजार कर ही नहीं सकदा। वो 24 साल तो पहला याद रखो कभी बाबिया को जाना शुरू करेगा कभी किधर शुरू करेगा नहीं तो इधर उधर भजेगा। संपूर्णताई के वास्ते परमेश्वर के अगे बने रहने के वास्ते तुहानूं अपने अंदर दी बहुत सारी चीज़ों को मारना पड़ेगा। अब्राहम 24 साल तक भी याद रखो परमेश्वर के सामने सही तरीके नहीं चलता। इसका मतलब ये नहीं कि असं 24 साल तक देखना कि 25 साल च परमेश्वर बरकत देगा। इंतजार करने की जरूरत नहीं है। असं अज भी परमेश्वर नाल सही होंगे तो परमेश्वर अज ही साडी गल नूं सुनदे हैगे। वचन च लिखिया हैगा कि ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਭਾਰੀ नहीं कि ਤੁਹਾਡੀ सुने ना पर लिखिया कि ਤੁਹਾਡੇ अपने गुनाहां ने किया पर ਤੁਹਾਡੇ परमेश्वर ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ दूर ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। इंसान दी अपनियां प्रॉब्लम अपनी समस्या दे करके वो परमेश्वर तो दूर है। पर अज जरूरत हैगी आ कि जे याद रखो तुसीं परमेश्वर ने तुहानूं चुनिया हैगा आ। परमेश्वर ने जदों शाऊल नूं याद रखो चुनिया एक राजा बना दिता। राजा बनने तो बाद की वो परमेश्वर के नाल चलिया सही तरीके नाल परमेश्वर की हजूरी च आया सही तरीके नाल नहीं। वचन च इत्थों तक लिखिया हैगा कि परमेश्वर ने खुद कहा कि मैं शाऊल नूं राजा बना के मैं शाऊल नूं राजा बना के पछताउणा क्योंकि उन्हें मेरे पीछे क्या चलना छाड़ दिता है। अज आपको सारी सिद्धता जी इस करके रुक जाती कि असीं परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे, परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं। जिन्ना चिर तक तुसीं परमेश्वर के पीछे नहीं चलोगे क्योंकि तुहाडा परमेश्वर जिहड़ा है वो जगत का चानण आ। जे चानण के पीछे चलोगे तो किधर नूं जाओगे? और जे हनेरे के पीछे चलोगे तो किधर जाओगे? किसी खड्डे च डिग जाओगे। चानण पिछे रहोगे तो चानण तुहानूं अग्गों दिखाएगा कित्थे प्रॉब्लम हैगी आ। अज इदां दे कुछ लोग जिहड़े दो बेड़ियां च पैर रख के चलदे हैं वो सब जगह जगराते कदे पता नहीं कितने भंडारा कदे मेला सब देखी जा रहे और उस तो बाद चर्च जी आके बैठे। परमेश्वर को याद रखो दोगले बिल्कुल भी पसंद नहीं। दोगले किया परमेश्वर ना असं हाईब्रिड कहने आगे ना इंग्लिश शब्द हाईब्रिड परमेश्वर को मिक्स जरा बिल्कुल पसंद नहीं है। तालतियां मिक्स पसंद है। ब्याह से जाते ना की कह के मिक्स सब्जी खानी आ किन्ने लोगों को पसंद आ किसी को भी नहीं। हुण असीं सब तो बैठ कर आदम तो वही किहड़ा फल खाता सी भले के बुरे का फल मतलब दो तरह के विचार में बैठ के की हो गया मिक्स हो गया और परमेश्वर को एक पसंद नहीं सी। जे प्रभु की हजूरी च बैठना तो परमेश्वर को तादे अंदर याद रखो 1% का हजारवां हिस्सा भी बुराई नहीं चाहिए कि उसे सानू उतना सिद्ध होना संपूर्ण होना फिर 1% का हजारवां हिस्सा है जेड़ा कोई बुराई नहीं चाहिए। याद रखो अब्राहम जेड़ा विश्वास करने लगा बनया कि ऐਵੇਂ नहीं बन गया ऐਵੇਂ नहीं बन गया। आज सोच के कोई मींह तो डरते गर्मी तो डरते धुप तो डरते कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपनी सब तो प्यारी चीज मेरे वास्ते नहीं करते
आज के परमेश्वर तारे को कहे तारा बेटा या बेटी नजर कुर्बान कर दो है इस योग आज आगे को तक पहुंचे ना। मैं अपनी बात आता मैं जो प्रभु जीवन देता मेरे गल में चैलेंज के नाल कई राजी को ते भेजा होना आज मैं सेवा शुरू की मतलब एक विश्वासी के तौर पे प्रचार करना शुरू किया और मैं अपनी कलीसिया जैसी प्रचार करते नहीं जा रहे तो मैं स्टडी नहीं की सेवा नहीं करता और एक गल मैं उदों तो प्रचार में अपनी कह दी कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा और मेरे सामने मैं तो तक कह चुका हूं मेरे सामने मेरे परिवार को चाहे मैनू कोई भी प्रभु यीशु मसीह के काम नहीं मार देगा ये सिर ना ते झुकेगा ना कभी निकाल देगा ये उधर तो कह दी थी कुछ भी हो जाए जे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है ना ते प्रभु यीशु के बरकतां पीछे नहीं चलना है कि कुछ मिल जे मैं पहला कह चुका है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है धरती के ऊपर रह के की करना है दुख चुकना मार खानी समस्या को सहना धरती से रह के प्रभु यीशु मसीह की जान देनी ये मुसीबत और स्वर्ग के विच जाके सिंहासन ते बैठ के 12 गोत्रां दा और याद रखो स्वर्ग दूतां दा न्याय करना ये साडे वास्ते फल हैगा धरती के फल की उम्मीद ना करो और मैं इस फल की उम्मीद करता परमेश्वर धरती ते जे मैं कोई काम करांगा ते स्वर्ग के विच बैठ के मैं 12 गोत्रां दा न्याय करना चाहना मैं स्वर्ग दूतां दा न्याय करना चाहना और मैं पूरे जगत का न्याय करना चाहना ये मेरी दी तेरी तारी की है इदां दा विश्वासी चाहिदा हैगा इदां दा विश्वासी चाहिदा परमेश्वर के पिछे जिहड़े लोग चलदे सी जिहड़े सिद्ध होए हैगे आ वो किदां दे सी साधु सुंदर सिंह बारे पढ़ के देखो परमेश्वर ने उन्हें चुनिया ओहदे घरदियां तक ने उन्हें निकालिया कई कुछ होया खूह दे विच सुੱਟਦਾ जो पेपर विच किनो प्रचार कर गया ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਇਥੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ और वो खूह के विच सिर्फ लाशां सुੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ गुनाह करते थे सुੱਟ दिंदे सी और वो बहुत सारियां हड्डियां और मांस ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਹੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ और बाहरों ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ और वो ताला ला के चल गए रात को परमेश्वर का एक दूत आया और दूत ने वो ताला खोलिया और थल्ले एक चीज भेजी कोई रस्सी का कुछ भेजा तो बाहर कर लिया जो बाहर आया तो बाहर कोई भी नहीं थी और दूसरे दिन फिर लोगों ने निकला ज्यादा फिरता है और ये देख के सब डर गए कि रात ताला किसने खोलिया तो देखने के ताला होता है बंद है ये संपूर्ण कार्य परमेश्वर के विजय प्रभु यीशु मसीह के चलने का मतलब पता की है 24 घंटे तक ये पता हो कि मौत कभी नहीं आ सकती किसी के वास्ते जेडे प्रभु ने मरण वास्ते तैयार है ना याद रखो वही परमेश्वर है जेड़ा इधर आ गया वो भैन दे जिदा माता दे समझो आ गया प्रभु ने मांगी लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया की करोगे तुसी फिर की करोगे फिर नहीं कहते आप जल्दी नहीं जाना छो पर बड़ी मुश्किल है सिद्धता संपूर्णता के जना के सारी इन चीज़ों के विच होनी है परमेश्वर ने शाऊल को भी राजा बनाया वो नहीं चल सकिया परमेश्वर के नाल अज असी सोचते मान लो तुसी सोचते परमेश्वर तुहानू राज देवे परमेश्वर ये सोचते राज लैन तो पहले सोच ला तू मेरे पीछे चलेगा या नहीं चलेगा प्रभु देना चाहते तुहानू सब नू राज देना चाहते हैं कि असी वो राज लैन वास्ते परमेश्वर के नाल सही है कि जो परमेश्वर कहते असी सिर्फ वही करते हैं याद रखो पहला पहला काम है कि असी परमेश्वर के सन्मुख सही तरीके दे नाल नहीं चलते इस करके असी संपूर्ण नहीं होते इस करके नहीं होते पर जे तुसी याद रखो मैनू बहुत वधिया बाइबल के किताब का इंसान है जिसके बारे पढ़ने तो बाद शायद उन्होंने बाइबल में याद नहीं किया जाता है मैं पहला एक बार उसके बारे बोलिया सी उन्होंने
को याद किया जाता है। मरियम का पति यूसुफ, यूसुफ को याद रखो, सब तो पहले उन्हें काम किया, उन्हें क्या कि मैं नहीं चाहता कि बदनामी होगा जो कुछ बेटे को छाड़ देना, लेकिन वो धर्मी सी, इस करके उन्हें बदनाम नहीं किया। याद रखो एक चीज को, वो मरियम ने जाम लाकर वो करवा सकता सी, कुछ भी कर सकता सी, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂਸੁਫ ਉੱਠ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਵਾਪਸ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠ ਤੂੰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਫਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। याद सोच के सामू को याद रखिए, पाठ फोन करते ना, अच्छा से इधर चल जा उधर चल जा, असली आपके लागे रोज अंदर दो चार मुंह तो मेरे फोन में ही छोड़ के बाहर करके कि बार-बार सामू को होता क्या जानते हैं। यूसुफ का जीवन पढ़ के देखो कितनी बड़ी याद रखो क्या गया और वो फटाफट उठिया जाना शुरू कर देता। उन्हें एक बार नहीं क्या परमेश्वर मैं ते चुकी लेना देना और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ समय जा रहा है कंपनी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ये समय समझो पूरी आक्रमण नहीं रहेगा, जिस वेले पूरे शहर के बच्चों को मारा जा रहा है, हालात बहुत खराब है। रात को जाने समय याद रखो किते भी जेडे वो राजे ने हेरोदेस के बंदे घेर सकते, कुछ नहीं हो सकता, यूसुफ को नाल मार सकते सी, पर एक परमेश्वर का चलन वाला बंदा जेड़ा है वो इना निडर होना चाहिए, एक निडर होना चाहिए। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਰਾਜ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 19 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 21 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। उन्हीं अध्याय 21 वचन दे विच, मत्ती 19:21 दे विच, यीशु ने उससे कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। केड़ी चीज आ रही तारी सिद्धता दे विच? की आ रहा है? पैसा। आदि आपको विश्वासी जीवन और सेवकाई दे विच तानू सुटण वास्ते सब तो पहला पैसा। इधर देखा जे तू संपूर्ण होना चाहना, जे तू सिद्ध बनना चाहना ते जा अपना माल जेड़ा बेच के इन्हां नूं दे दे, कंगालां नूं दे दे, गरीबां दे विच वंड दे, तेनूं किथे धन मिलेगा। जे तां मान लो तुहानूं कह रहा नहीं कहना स्वर्ग च जाके धान की करना कोई जवान नहीं होनी। इतना सारे दिमाग चाहूगा ना कि स्वर्ग के कोई सूत्रा की दुकान नहीं होनी, स्वर्ग में कोई मोबाइल की दुकान नहीं होनी, फिर उत्थे जाके पैसे नहीं करते। याद रखो परमेश्वर एक बड़ी बड़ी गल है कि सकल सोचा के दसी प्रभु यीशु मसीह एक ही चीज छड़ने दे बदले सिद्धता दे रहे बदले एक ही चीज इन्हें चीज है एक ही टीचर ने वास्ते कह देता है अपना पैसा छाड़ के दे दे। परमेश्वर ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें कंगाल बना दूंगा, फिर कोई जिंदगी पर कोई पैसा नहीं कहेगा, नहीं कह। पर जो तू पहला तो लुट के खो के गुनाह का करके किसी तरह जो इकट्ठा किया सब तो पहला वो बात कर। आज सोच के देखो सकता तुझे कोई चीजा झूठ बोल के कोई गुनाह करके किसी ने लेना हो और वो भी सामने से ले जाओ। परमेश्वर तुझे पहले बात कर, मैं तो देना तुम्हें बात दूंगा, पर सब तो पहला ये कट ते जेड़ा काम तेरे मैं देखो तुम सिद्ध भी रखेगा, संपूर्ण रखेगा, पर जेड़ा काम तेरे को पहला प्या ये तुम पाप में चले जाओगे। हालेलुया। ये तेरे
पाप विच लैके जा रहा हैगा, पर जिहड़ा धन तेनू मैं देंगा बाद विच वो तेनू पापी नहीं बनाएगा, क्योंकि तू मेरे सामने रहेगा। फिर तू मेरे सामने चलेगा तो तेरा पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु ने कहा जे तू सिद्ध होना चाहना तो अपना माल धन जिहड़ा कंगालां नूं दे दे। ये पैसा जिहड़ा याद रखो किते ना किते अज बहुत सारे लोग है कि जिन्हां दे जीवन च पैसा जिहड़ा उन्हां नूं संपूर्ण नहीं होण दे रहा। वो पैसे के कारण याद रखो प्रभु दे विच संपूर्ण नहीं हो पाते, नहीं हो पाते कि पैसे का करके लोग जाते हैं। क्योंकि पैसा जिहड़ा हैगा पहला तिमोथी 6:10 की लिखा की लिखा है, किसी को पता है क्या? दसो। पैसा सब प्रकार दी बुराइयां की जड़, और बहुत सारे लोग लिखे इसके पीछे चलते की अपने विश्वास को भटक गए। जरूर पढ़ दो एक बार पहला तिमोथियुस 6:10 वचन के इस तरह लिखा हुआ है कि रुपया जिहड़ा हैगा बुराइयां की जड़ आ। क्यों? क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। इत्थे लिखा पैसों का लोभ जिहड़ा आ ये सब प्रकार दीयां बुराइयां की जड़ है। अज सोच के देखो पैसा कमाने वास्ते इंसान की नहीं करता है, वो झूठ भी बोलता है, वो झूठ भी बोलता है। अज तुसीं चर्च में जाके देखो बहुत सारे चर्च जिन्हें हर हफ्ते सिर्फ एक ही बच्चा रहा 20 बीजो दसवंध लियाओ। इसका मतलब एक ही कर रहा है किते ना किते बुराई करा रहा है, चाहे वो विश्वासी है चाहे वो सेवक है, चाहे संसार में कोई इंसान है। रुपया सब बुराइयों की जड़ है। पैसा कमाने का करके कुछ लोग इतों तक अपने आप को थले सुटन दे गए कि शायद परमेश्वर को पसंद ही नहीं करते। ये बुराइयां की जड़ आ। याद रखो कभी कभी बुराई साडे जीवन च साडे घर च इस करके पै जाती क्योंकि साडा पैसे नाल प्रेम पै गया। प्रेम तो चाहिए सी परमेश्वर के नाल, पर किहदे नाल पै चुकिया आ? पैसे दे नाल। हो सकता तुहाडे चों सोच के को अज किसी ने गलती नाल 10 की 50-100 रुपये किते बाहर रहते हुए तुहाडा ध्यान उत्थे लगा होगा, ओहो 100 रुपये उत्थे रखा सी चेता नहीं रहा, पता नहीं कोई नया कर चुक के ना रह जाए कुछ ना हो जाए, साडा ध्यान किथे हैगा? पूरा उधर पैसे दे विच। प्रेम जिहड़ा रुपइयां दे नाल जिहड़ा लोभ हैगा आ वो बुराइयां की जड़ जे। अजकल नौजवान बच्चे क्यों बिगड़ जाते? क्योंकि उन्होंने जेब के विच माँ प्यो पैसे दे रहा धड़ाधड़ लै जा तू लै जा, फिर वो नशे में चले जाते हैं, फिर वो घर का समान बेच के बहुत सारी प्रॉब्लम को खड़ा करते। अज सोच के वेखो छोटे छोटे बच्चों को फोन लैके दिते गए। माता पिता को शायद ज़्यादा पैसा पर उसे करके उन्होंने धीआं और पुत्र बर्बाद हो रहे क्योंकि तुहानू नहीं पता कि तुहाडे बच्चे की ये सब प्रकार दी बुराइयां की जड़ आ। सब प्रकार दियां सवेर तो लैके शाम तक तुसीं कुछ भी करते हैं तो उहदे विच पैसा ही इस्तेमाल हुंदा है। हालेलुया। तुसीं सोच के को जिहड़े बंदे कोल जे पैसा वध जे ना 1 लाख रुपया हो गया, मान लो तुहाडे कोल 1 लाख रुपया हो गया, की करोगे तुसीं? हाँ जी की करोगे तुसीं? तुसीं पता की करोगे? 1 लाख रुपया जिहड़ा आ उहनूं दूसरा डबल बनाउण दी कोशिश करोगे कि 2 लाख बना दे। कई लोगों को मान लो चाहे किसी धार्मिक स्थान तो चाहे चर्च में हो गए हो कि पैसे का जानना वो फटाफट चुके जेब च पा लेंगे वो तुम उस परमेश्वर को जानते उसे प्रभु का भी जरूरत नहीं। कई का जेब के पैसे के बोलो जाके पैसा अच्छा पता करके बाद में चले गए फिर लोगों का तरीके बोला घर भर्ती ना। ये बुराइयां की जड़ है। पैसा किसी तरह भी बुराई करा सकता तुहाडे कोल।
ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਭਾਈ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਨ ਉਹ ਵੱਡਾ ਫੋਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਮ ਕਰਕੇ ਛੋੜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਰਕੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਚੱਲਣਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਔਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਸੀ। ਫੋਨ ਸੁਣ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈ ਰਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਦੇਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਾੜਿਆ ਸਾਬੋ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਲੱਭਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦ ਵਧੀਆ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਘਰ 'ਚ ਇਨਵੇਟਰ ਲਵਾਇਆ, ਫ੍ਰਿਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਫਲ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। और की लिखा कि मैं पढ़ना चाहना, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना लिया। वचन च लिखा कि बहुत सारे लोग जिहड़े गया वो पैसे के पिछे भजते अपने विश्वास तो ही भटक गए। हुण वो विश्वासी भी नहीं रहे, विश्वास तो भटक के और अपने आप को तरह तरह दी बीमारियां दे विच फसा रहे। हालेलुया। तुहाडे जो कितने लोग पैसे नाल प्रेम करना चाहते हो? हालेलुया। तन मैं एक होर एक वधिया एक परमेश्वर के बंदे के बारे दसना चाहना। पढ़ांगे लूका दी इंजील 19 अध्याय। ये भी बहुत वधिया लगता है कि जिन्हें थोड़े समय के प्रभु को जीवन दे दिता है। और की क्या लूका 19 अध्याय और 8 वचन के देखो, कुछ लोग पैसे पिछे भजते आ। उस धनी बंदे ने जिहड़ा प्रभु के कोल आया सी जवान, उन्हें पैसा नहीं छड्डिया और सिद्ध नहीं पढ़ियागा। पर इत्थे याद रखो, एक बंदे के बारे पढ़ते हैं, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। एक बंदे नूं प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि अपना माल धन जिहड़ा कंगालां दे विच वंड दे ते मैं तैनूं की देंगा, स्वर्ग विच धन देंगा। और एक बंदे नूं कुछ भी नहीं दिया। तुसीं परमेश्वर के जो सामने जाते हैं उदों तुहाडे अंदर परमेश्वर के अपने आप ही प्रभु जिहड़े प्रभु के विचार जिहड़े तुहाडे अंदर पैदा होंदे आ कि परमेश्वर की चाहुंदे आ तुहाडे कोल। कदी कदी प्रभु का आत्मा सानूं बड़ी बड़ी कुछ गल करदा है पर असीं कहने नहीं ये मेरा ही रहम होना। प्रभु कह रहे थे कि चीज छड़ दे, तेरी नहीं है, आ काम रहन दे, तू नहीं करना है। मैं सोचते नहीं नहीं प्रभु ये तो करना बड़ा जरूरी है, जे ना किया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। जो तुम परमेश्वर के सामने जाओ, याद रखो संडे को तुम प्रभु के सामने है। इस वचन के द्वारा मैं तो सवाल पूछना चाह रहा है, किन्ने लोगों को अपनी गलती नजर आई है? किसी को नहीं। वाह भी वाह, सब साधु बैठे हैं, इतना की कलीसिया बना देते हैं।
हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ? ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਭਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਾਹਿ ਘਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੂਰੇ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਿੱਧ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਆ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਬਸ ਗੱਡੀ ਪੈਣੀ ਉਹ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ? ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਜੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥੋੜੀ ਤੋੜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਕਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਆ। ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਯਹੂਦਾ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਹੀ ਆ ਤੂੰ ਸਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਹਿਆ। ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਖਾਏਂਗੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ? ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਸੱਪ ਨੇ ਕੀਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਸੱਪ ਨੇ ਖਾਇਆ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਹੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਆ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਨ ਧਨ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਧਰਮੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਚਰਚ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬੜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੱਗੀ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ परमेश्वर मैं अपनी अद्धी संपत्ति अद्धा धन दौलत जिहड़ा हैगा आ देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया हो तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। ताले जो कोई है जिन्हें किसी ने धोखे नाल मान लो 10 रुपए ले तो जाके गाड़ी वापस की हो एक ही तुसी जिन्होंने वापस की हो तो मैं दावे ना कह सकता केड़ी पर हो सकता किसी ने तो एक चपेड़ मारी ने 4 जरूर मार के होंगे 4 गुना वापस से कितना होगा और दूसरे किसी ने एक गाल कटी होगी तुसी 4 कटी ना होगी ना 4 गुना दे रहे हैं। सिद्धता दे विच संपूर्णता च कुछ चीज़ां ते जरूर आ रही हैं ये दिन पैदा हो रही है पर विश्वासी इनू मनने वास्ते तैयार नहीं है। कोई सेवक भी मनने वास्ते तैयार नहीं। मैं खुद
मैं खुद अपने आप को बड़ी नहीं करके परमेश्वर की कमियां मेरे से रखो दूर। हालेलुया। याद रखो, इस बंदे नूं याद रखो, कहने की लोड़ नहीं पई, अपने आप ही खड़ा होने कहता कि मैं अपना पैसा जड़ा प्रभु तेरे पिछे चलन का करके इन्हूं छड़ देना है। उन्हें अपनी मर्जी के नाल, जे तुसीं अपनी मर्जी नाल कोई छड़ दोगे तो वधिया हैगा, क्योंकि जे तुहाडे कोलों पुछया जाऊगा फिर असीं जवाब देने वास्ते तैयार नहीं है। और उहदे बदले प्रभु ने उन्होंने की दिता हैगा। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। की क्या प्रभु ने? आज इस घर के विच मुक्ति आई आ। आज तो यह भी किया, अब्राहम का पुत्र है। आज इस घर आज इस जीवन से मुक्ति आई है। असीं तो याद रखो परमेश्वर के वचन का जवाब नहीं दे पाए, लेकिन मुक्ति को जरा ठुकरा रहे हैं, ठुकरा रहे, ठोकर मार रहे, क्योंकि शैतान जिहड़ा हैगा वो तुहानू कभी भी सब तो पहले तो ये नहीं समझ आऊगी, तुहानू जब तुहानू पता नहीं लगन दोगा कि तुहाडे अंदरों बैठा है, क्या तुहाडे लागे बैठा है, तुहानू कभी नहीं पता लगेगा। क्योंकि इंसान का जिहड़ा घमंड हैगा ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਘਮੰਡ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਘਮੰਡ ਕਰਨਾ, ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਡੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੱਖਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਇਹ ਕੋਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹ ਘਮੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਛੱਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। पता क्यों नहीं चुकेगा? क्योंकि शैतान ये कह रहा तेरे अंदर घमंड नहीं रहेगा, और उसका घमंड ही हमको कह रहा है कि मैं तेरे अंदर नहीं है। हालेलुया। घमंड ते आ जाता है ना, कोई चंगा सूट ही पा ले तो घमंड था मेरे जगह नहीं पाया गया, ये अंदर घमंड आ जाता है। कई मोटरसाइकिल से मान लो तेल पौन के ना, तेल में 500 पाया और लेना के 50 पाया, वो फट गया था 500 पाया। ये तो सारी जिंदगी है तो आना आना सारे दिन। मैं कई दिन से आया तुसी कि वे कहना कि बाजार बोलते हैं अच्छा तो कोई लाके तेरा दहा मतलब कि 2 किलो ना 2 किलो आ बोलता था तो भांडा हो गया तो मैं जाना है तारे के अंदर बताया था कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अपने नाम में पूछो कि तारे अंदर घमंड नहीं आ रहा। हालेलुया। शैतान बड़ा चलाक जो, तुहानू कभी नहीं पता लगन देगा कि तुहाडे अंदर घमंड हैगा जी। याद रखो इस पैसे ने बड़े बड़े राजियां नू सुट दिता सी। सुलेमान जिहड़ा सी परमेश्वर ने उन्होंने इन्ना कुछ दे दिता सी, वो ये सारियां चीज़ां होने करके याद रखो डिग गया सी। पैसा जिहड़ा बुराइयां की जड़ आ, सुलेमान को पैसा वधिया, उन्हें ज्यादा रानियां रखियां। वचन च लिखा सी कि जिहड़ा राजा वो ज्यादा रानियां नहीं रखे, और लिखा सी घोड़े भी ना रखे, वो मिस्र तो घोड़े मंगा के कहना पैसे है शैतान की करता सी, घोड़े मंगा लिया सी। ये बुराइयां की जड़ आ, जिन्ना ज्यादा पैसा होगा उन्ना ज्यादा बुराई में चलेगा। पैसा देखो तक बुराई करा देता है, पैसे का करके कई बारी लोग मर भी जाते हैं। वो कहता कि नहीं हुआ अनन्यास फिरा के रहे सी, पहली बेची, पहली बेचने तो बाद एक दो महीना देखती भी तक और पूरा प्रभु देना का, और याद रखो दोनों चीज मर गई। ये पुराने की जड़ है, हम बुराई का लेके जा सकता है। पर जे मुड़ना चाहते हैं कि चंगी गल है कि परमेश्वर तुहाडे जीवन के जरूर काम करनगे, और मैं विश्वास करता कि तुहानू प्रभु जरूर अपने काम लिए इस्तेमाल करना। तीसरी जिहड़ी साडे जीवन च समस्या हैगी आ, असीं संपूर्ण नहीं हो रहे। पहली किहड़ी हैगी आ, असीं परमेश्वर की हजूरी विच जां परमेश्वर के सामने सन्मुख सही तरीके नाल नहीं चलते हैगे। और दूसरी किहड़ी हैगी आ, हाँ जी, पैसा। साडा पैसा सानू संपूर्ण होने तो रोकदा आ। पैसिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ प्रेम हैगा सानू परमेश्वर तो दूर कर रहा है।
और तीसरी पढ़ांगे असी लूका दी इंजील 6 अध्याय ਉਹਦੇ 40 वचन। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु यदि कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। वचन लिखा कि चेला अपने गुरु तो बड़ा नहीं है, पर की होगा जी वो सिद्ध होगा फिर वो समान होगा। चेला जड़ा गुरु तो कभी बड़ा नहीं हो सकता। इन्ना हो सकता कि चेला काम ज्यादा कर सकता गुरु को, पर बड़ा नहीं। आज सारे इदा का सिस्टम है। मान लो कि चर्च का कोई विश्वासी जे कि जो दुआ करना सीख ले ते किसी ने प्रार्थना करके वो ठीक हो जाए, वो फिर कहता अपना चर्च खोल देना, फिर वो पाठ बोलेगा वो मेरे को दुआ करो, पाठ की दुआ से क्या असर है, मेरे को दुआ करो। जे तुसी दो परमेश्वर के नबी परमेश्वर के दासा बारे पढ़ोगे, एलिया और एलीशा के बारे, ते तानु समझ आएगी, तानु पता लगेगा। लेकिन चेला अपने गुरु तो बड़ा नहीं, पर जो सिद्ध होगा तुझे समान। चेला काम ज्यादा कर सकता, पर इसका मतलब है थोड़ी तो अपने गुरु का गुरु बन के वैसे नहीं बन सकता। किन्ने काम ज्यादा किया एलिया ने कि एलीशा ने? एलीशा ने। पर एलीशा कौन सी? वो किधर चेला का? एलिया का चेला सी। अधीनता के विच आज्ञाकारी से लगा और डबल मसा परमेश्वर ने दे दिया है। और एक चेला की जी भी हैगा सी रात को एलीशा दा भी, वो तो ज्यादा काम कर सकता जितनी गति में मिल सकती से चेला के, पर वो केड़ी चीज पै गया? लालच विच पै गया। वो पैसे ना करके यार दो ही डेढ़ प्यास ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਬੁਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਕੁਛ ਚੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ